Hello everyone, my name is Suraj and I welcome you all to my channel IITian Teaches. So today we are going to discuss about the PhD admission that is going on or taking place in various IITs or central universities. So in today's video I will be talking about only IITs, that list of IITs that has given their notification about the PhD admission for this winter semester. So before I proceed, let me tell you about myself, that who I am, so that you can get a true understanding of why I'm making this video. So my name is Suraj, as I have already told you. I am a PhD second year student research scholar at IIT Kharagpur in the Department of Industrial and Systems Engineering. So my main motto of making this video is not about telling you the important dates and all for various IITs. That is not the main objective, because obviously most of you are have already done your BTech or have also done your masters, and therefore going to take admission in various IITs for PhD programs. So you are smart enough to find out the dates and all and everything, but still I wanted to make a gist of all the IITs that have given their notifications and released their date for various admissions in their PhD programs. So what actually I'm going to do, in not in this video but in the other video, that I will be talking about the admission procedure, the selection procedure, because last year, from 1 year, I have already seen that after COVID-19 their shortlisting criteria has changed totally. So what I will be going to do is I will be telling you all the shortlisting criteria that these IITs are following now. Okay, because they can't take written test and all, so they have adopted a different criteria of shortlisting the candidates. Okay, so I will be talking all those, but in this video I will be telling you about all the IITs that have released their notifications. Okay, so okay, you can see on your screen, it will be projected on your screen. You can see that okay, so you can see on your screen that here are the list of total I guess 11 IITs including IISc Bangalore that have released their notification for PhD admission. I have missed two. One is IIT Bombay, whose applying date is already over, so you cannot apply to it, and I'm very sorry for it, because I was quite busy with my own academic program and I was not able to make a video on that IIT Bombay. So though if you have applied to it, that is a very good, but if you have not applied, fine, there are many other IITs as well whose dates are still pending. You can go and apply to all those IITs. The first one is IIT Delhi. Okay, so the date here is 31st of October. The last date to apply is 31st of October. You can go and check their guidelines and everything, and what are the supporting documents they want and what are the procedure of application. You can go and check on their website and apply there. Okay, so सी लेट मी टेल यू वन थिंग. प्रोसीडियर जो होता है सारे आईआईटीज का, वो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है किसी में भी. आप किसी भी आईआईटी को ले लो, चाहे आईआईसी को ले लो, एप्लीकेशन प्रोसीडियर जो है वो सबका सेम होता है. यू जस्ट नीड टू गिव योर नेम, योर फादर नेम, योर एकेडमिक डिटेल्स एंड एवरीथिंग, योर बीटेक का मार्क्स, अगर एमटेक की हो तो एमटेक का मार्क्स वगैरह ये सब है. गेट स्कोर अगर आपका वैलिड है तो वो देना है. इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जैसा कि मैंने बताया है, बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा. बिकॉज इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. जब मैंने एडमिशन लिया था तो भी हुई थी, बहुत लोगों को होती है. मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जिनको मेरे समय पे एडमिशन नहीं मिला था. लाइक मैंने एमटेक खत्म किया और उसके बाद जस्ट उसी के सेमेस्टर में मेरा एडमिशन हो गया था, बट मेरे काफ़ी सारे दोस्तों का एडमिशन नहीं हो पाया था उस समय. उन लोगों का उसके बाद वाला विंटर सेमेस्टर में हुआ था, या तो किसी ने 1 साल वेट किया फिर एडमिशन हुआ है. तो बहुत सारे लोगों का मेन प्रॉब्लम उनके एप्लीकेशन के फॉर्म में ही हो जाता है, जिसके कारण एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, या फिर उनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है प्रोफेसर्स को कि क्या कहना चाहते हैं, कैसा इनका टेन्योर बीता है एकेडमिक्स में, तो जिसके कारण एप्लीकेशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर मतलब उसके ऊपर में मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ओके, चलिए हम लोग टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं. हम लोग आते हैं सेकंड पे, जो है आईआईटी मद्रास. ठीक है, जिसका 8th of November है. ओके, एंड देन आईआईटी खड़गपुर जिसका 27th of October है. आपको सारा यहाँ पे डेट्स मिल जाएगा. प्लीज लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जा करके अप्लाई कर लीजिए, बिकॉज बहुत रश होता है. बहुत सारे आईआईटीज में जो
फीस हम लोग पे करते हैं, वो जो एप्लीकेशन का फीस है, इसके लिए बहुत झोला हो जाता है, बहुत मतलब लोचा हो जाता है, और काफ़ी सारे फ़ी ही नहीं पे कर पाते हैं एट द लास्ट मोमेंट पे, तो वो मत करिएगा। अब बहुत सारे IITs का तो मैंने फीस यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि उनके एप्लीकेशन प्रोसीडियर में ही उतना अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ था। जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो डेट्स है, ठीक है ना। आप जाइएगा, ज़्यादा किसी का भी फीस नहीं होता, सारे IIT का ऑलमोस्ट 200 से 500 के बीच में ही रिवॉल्व करता है। एक दो IIT है जिनका 750 है, और आई गेस IIT खड़गपुर इकलौता है जिसका 1000 रुपीज़ है। हाँ, उसको वैसे ही कुछ होगा, 1000 रुपीज़ है, ठीक है। और यहाँ ओके, तो IIT खड़गपुर का जनरल का 1000 रुपीज़ है, और अगर आप ST SC वीमेन है तो आप 500 रुपये में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ओके, IIT रुड़की का मैंने मिस कर दिया है, आई अपडेट इट, ठीक है। मैं आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा उससे। IIT गुवाहाटी का है, वो है 8 नवंबर, फीस उसी के आसपास है, 500 के आसपास ही लगता है, ज़्यादा नहीं है। सारे IITs का सेम ही है। IIT हैदराबाद है जिसका 3 नवंबर है, ठीक है। और IIT पलक्कड़ है जिसका 10 नवंबर है। IIT कानपुर है जिसका 5 नवंबर है। IIT पलक्कड़ का फीस का बात करूँ तो जनरल के लिए 1000 रुपीज़ है एप्लीकेशन फीस, और जितने भी रेस्ट है लाइक वीमेन, ST SC, जो भी OBC और वो लोग का 50 रुपीज़ है। IISc बेंगलोर का वो 31 अक्टूबर है। IIT गांधीनगर 24 अक्टूबर है। एंड लास्ट इज IIT रोपर जिसका 8 नवंबर है। नाउ other than all these IITs and IISc, there are certain NITs also and other central universities who have released their PhD admission notification. Okay, so I was quite busy with my stuff, so मैंने सबका इकट्ठा नहीं कर पाया है। अगर आपको ज़रूरत है, मतलब अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग अपना मतलब PhD प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन जाहिर कर चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर उसके ऊपर में भी वीडियो बना के बता दूंगा। नाउ मैं एप्लीकेशन मतलब किस तरह से अप्लाई करते हैं वो भी मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर ज़रूरत हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं किसी 1 या 2 IIT का दिखा दूंगा कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो क्राइटेरिया, बट आई होप कि आप लोग MTech BTech कर चुके हो तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से किसी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, बकवास है सब, मतलब सीरियसली। तो स्टिल अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिएगा। जो मैं करना चाहता हूँ बीइंग मतलब बीइंग अ PhD स्टूडेंट, कि शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है IIT में, कैसे वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, आपको क्यों करेंगे, दूसरे को क्यों नहीं करेंगे। लाइक सपोज एक बहुत ही कॉमन चीज़ मैं बताऊं कि अगर आपका 8 पॉइंट आया हुआ है आपके MTech में, तो 8 पॉइंट MTech में सभी को आप देखोगे तो उसी के रेंज में मार्क्स आता है, ठीक है। लाइक 8, 8.5, 8.25, 7.9, 7.8, 8.25, 8.5, इसी तरह से सबका मार्क्स आता है। तो वो आपको क्यों लेंगे, उनको क्यों नहीं लेंगे, ठीक है, या उनको क्यों लेंगे, आपको क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये होता है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया का मेन फंडा। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। मैं मैकेनिकल से MTech मतलब BTech किया था, एंड देन प्रोडक्शन से मास्टर्स किया हूं मैं अपना। अभी इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग में मैं PhD कर रहा हूं। तो इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग का PhD का मतलब जो इंटरव्यू ये कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, उस पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही। मैंने ऑलमोस्ट सारे IITs में दिया हुआ था PhD के लिए, और हमारे समय पे बिकॉज इट वाज द फर्स्ट बैच जिन्होंने कोविड-19 के बाद से एडमिशन अप्लाई करना शुरू किया था PhD के लिए IITs में, तो टोटली प्रोसीजर चेंज हो गया था। कई सारे IIT के प्रोफेसर्स के साथ मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट भी हुआ था 2-3 जगह, तो उन्होंने बताया था कि उन लोगों को भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से वो कैंडिडेट्स को मतलब स्क्रीनिंग करें, ठीक है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा ये वीडियो तो। और मैं इन सब ज़्यादा कर कैसे अप्लाई करते हैं इन सब पे वीडियो ना बना के, मैं आपको चाहता हूं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीडियर होता है, कैसे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, ठीक है, फीस वगैरह के क्या सीन है, गेट का जो स्कॉलरशिप है उसके अलावा और क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, तो इन सबों के ऊपर में मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।